Very good morning, dear students. Hello, how are you all? Today is 12th May, Tuesday, and now we are in the phase 3 and the 9th day. Today's lesson is on gene silencing. So it is the lesson number 9, and as I think most of the students wanted that we should deal with gene silencing, since this is a very important component presently when we are studying advanced bacteriology or virology or mycology or molecular basis of plant pathogen interaction. Gene silencing plays a very important role. Now just I will give you a little introduction, and I will come to the different terms and definitions which you people will be reading in the gene silencing concept. Okay, so most of the gene silencing, now this GS means gene silencing. Okay, most of the gene silencing phenomenon, they are related to RNA activity within the cell, and therefore we will find a lot of terms which are related to RNA. Therefore the term RNA silencing is often used to describe gene silencing and comprise all mechanisms by which RNA sequences, they regulate the gene expression, except those sequences which are characterized as mRNAs, tRNAs or ribosomal RNAs. Okay, so you just listen and you try to imbibe what I am saying. I am going to explain each and every word what I am going to speak. I am speaking right now. Okay, so therefore when I am saying the term RNA silencing, I know you all know what is DNA and RNA. So the term RNA silencing is often used to describe the gene silencing. So that's why sometimes we get confused actually what is basically the gene silencing and what is the RNA silencing and what is the RNA interference. Many lot of terms are there, and then we get confused that are these the same terms? Do they mean the same or they are differently? So I'll explain you separately all of them. And comprise all mechanisms by which RNA sequences, they regulate the gene expression, except those sequences which are characterized as, you all know what is mRNA, messenger RNA, transfer RNA, ribosomal tRNA, that is transfer RNA, or ribosomal RNAs, rRNAs. Now genetic and biochemical studies have confirmed that the mechanism of RNAi, that is RNA interference, co-suppression, and VIGS, that is virus induced gene silencing, they are similar. Moreover, the biological pathways which are underlying double-stranded RNAs induced gene silencing exist in many, if not most of the eukaryotic organisms. If you find most of this double-stranded RNA description in the gene silencing, in RNA silencing, and that is in the eukaryotic organisms. The study of similar phenomenon in different organisms like Cynoharabditis elegans, Neurospora crassa, Drosophila melanogaster, then Arabidopsis thaliana and Petunia hybrida, which allowed the proposal of models for different but interacting forms of silencing. So this is basically, I am trying to just speak a simple definition, a simple explanation of gene silencing, so that when we proceed further, we are able to now understand. Now coming to the concept and the mechanism, I will come word by word, like ABCD will be coming from the smallest unit to the biggest, okay, largest one, or I would say from the simplest one we'll go to the difficult ones. Now before we study what is gene silencing, actually when we are talking about gene silencing, I know you all know these definitions, you have learnt it, you have written it, you have cleared the exams, but still, you know, like talking and discussing makes us help us to understand more and more, and the subject becomes more easy, because these subjects are not so simple as you know, like when we talk about disease management कि स्प्रे कर दीजिए या हम रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कर लें या प्लांट्स को अप्रूट कर दें, तो ये एक जनरल भाषा होती है, और इसमें क्या होता है कि हम लोग कई बातें अपने कॉमन सेंस से भी लगा के उसको समझ लेते हैं. लेकिन जब हम जीन साइलेंसिंग जैसे कंसेप्ट पढ़ते हैं तो इसमें जब तक हमें गूढ़ मतलब ज्ञान नहीं होगा, यानी कि हमें डिटेल्ड इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, हम उस तक पहुंच नहीं पाते और कभी कभी हम बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं.
ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक आई विल जस्ट टेक सिंपलेस्ट यूनिट्स, and therefore I think that you all will appreciate it. And now if we come to steps to attain genes alignment, let us study some simple terms and definitions which are concepts to make ourselves clear. Now let us talk about some of the very easy definitions of the genes. Okay, what is a gene? So we are seeing many definitions, very simple definitions, but they all have some meaning about the gene. What is a gene? An easy definition: a gene is the basic physical and functional unity of heredity. Genes are made up of DNA? Question mark. No, of course they are made of DNA. Alleles are forms of the same gene with the small differences in the sequence of DNA basis. These small differences contribute to each person's unique features. Scientists keep track of genes by giving them unique names. So names are given by based on the functions. Okay. Now, coming to the another definition, another very simple definition. They are found in almost every cell's nucleus and are made up from strands of what? DNA. Segments of DNA called genes are the ingredients. What is DNA? It is the ingredients. Each gene adds a specific protein to the recipe. So हर जीन एक specific protein बनाता है, मतलब ये सब काम करते हुए हर जीन का एक रोल होता है कि वो प्रोटीन से, क्योंकि हमने देखा है ना प्रोटीन का ही बहुत बड़ा रोल होता है एक्चुअली में, क्योंकि प्रोटीन क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स आर मेंट फॉर बिल्डिंग, रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग योर बॉडी. सो इट डजंट मीन योर बॉडी मीन्स ओनली ह्यूमन बॉडी, इट मीन्स टू द ऑल आवर living kingdom where the genes are playing the important role. Now genes are a set of instructions that determine what organism is, what the organism is like, its appearance, how it survives and how it behaves in its environment. You can also say set of it, because based on the genes only everything is appearing, the appearance, the ecology, whatever you call about. All the living organisms, they survive because of the genes. Now what are genes? They are made up of a substance called deoxyribonucleic acid or DNA. They give instructions for a living being to make molecules called proteins, a specific sequence of nucleotides in DNA or RNA that is located usually on a chromosome, and that is the functional unit of inheritance. What is that? It is the functional unit of the inheritance, which is controlling the transmission and expression of one or more traits. So you know, like when we are talking about the sequence of nucleotides in DNA or RNA, which is located usually on the chromosome, and we also know that it is a functional unit. And what is it? Functional unit of what? Inheritance. That means we inherit those characters also, controlling the transmission and expression of one or more traits. एक या एक से ज़्यादा ट्रेट को कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड. एक पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, उसका स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड होगा जो कि अल्टीमेटली क्या बनाता है? प्रोटीन. और कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ अदर जेनेटिक material, any of several compounds that consist of a ribose or deoxyribose joined to a purine. अब हमें पता है ना, क्योंकि इसके अंदर राइबोस होता है या deoxyribose होता है जो कि शुगर होती है, वो किससे ज्वाइन करता है? प्यूरिन और pyrimidine बेसिस से. एन टू फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके अंदर, एंड दैट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सच एज RNA एंड DNA. Any of the various complex organic acids such as DNA or RNA that are composed of nucleotide chains. So हम यहाँ देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 ये तो एक एक्चुअली इसका वो मॉलिक्यूलर मॉडल है. तो इस मॉलिक्यूलर मॉडल में हम देखते हैं 1 क्या है? हाइड्रोजन, मतलब जो खाली खाली सब दिखा दे रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन है. ये 2 क्या है? ये ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ठीक है. 3 क्या है? कार्बन इन द हेलिकल phosphate ester chains, and carbon in the, I think I can come to the slide also. Here, so here we can see that 3 is the carbon in the helical phosphate helix बना हुआ है ना, helical phosphate ester chains. What is 4? 4 is the carbon and nitrogen in the cross-linked purine and pyrimidine. Okay, and 5th is the phosphorus, and it is a double helix. So 5th is the phosphorus, which is a double helix, and we can see here this is a molecular structure of the
Now coming to the next, why did I talk about gene? Because everywhere whenever you are reading this definition, you find there is a term, or you would say there is a term which is called as regulation of gene expression. अब what is regulation of gene expression? अगर अभी आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछ के मैं इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेती कि आप लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या क्या समझ रहे हैं, लेकिन ये सोचते हुए कि मैं एकदम सिंपलेस्ट मेथड से सिखा रही हूँ और एकदम ABCD सिखा रही हूँ. इवन इफ यू नो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन बेयर विथ मी सो दैट इट इज़ अ रिविजन फॉर ऑल ऑफ यू. व्हाट इज़ अ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन? ये है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब हम जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए आगे जीन साइलेंसिंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा. तो फॉर अ सेल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, एक सेल को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए नेसेसरी प्रोटीन्स मस्ट बी सिंथेसाइज एट द प्रॉपर टाइम. एक प्रॉपर टाइम पे क्या होना चाहिए? प्रोटीन सिंथेसाइज होने चाहिए. ठीक है. all cells control or regulate the synthesis of proteins from information. ये information जो proteins की उनको कहाँ से मिलती है? which is encoded in their DNA. वो उनके DNA में होती है. अभी हमने बताया था ना कि DNA के बेसिस पे ही हम लोग उनके कैरेक्टर्स और ये सब डिफाइन कर सकते हैं. तो DNA के अंदर ही वो मैसेज होता है जिसको कि वो एनकोड करते हैं, एंड उसी प्रकार का DNA वो जो होता है उसी बेस पे, जीन के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन, मतलब हम लोग क्या, आई मीन द सेल्स synthesize the proteins. So we need to understand that all cells, please read it carefully, all cells control or regulate the synthesis of proteins from information which is encoded in their DNA. मतलब उनके DNA में जो information है उसको. The process of turning on a gene to produce RNA, the process of turning on a gene to produce RNA and protein is called gene expression. What is gene expression? The process of turning on a gene टू प्रोड्यूस RNA एंड प्रोटीन. मतलब जब प्रोसेस टर्न हो जाता है ना, जब DNA में जब वो प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसमें कि उसको जीन एक्सप्रेस करना होता है, तो उसे क्या करना होता है? उसको RNA से प्रोटीन की तरफ जाना होता है, जिसको कि हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं. वेदर इन अ सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और अ कॉम्प्लेक्स मल्टी, भले हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बातें करें या कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, हर सेल कंट्रोल करता है व्हेन एंड हाउ इट्स जीन्स आर एक्सप्रेस्ड. हर सेल में एक ही कैपेसिटी होती है कि वो ये डिसाइड करता है कि कब उसके जीन्स को एक्सप्रेस होना है. फॉर दिस टू अकर देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल व्हेन अ जीन इज एक्सप्रेस टू मेक. सो इसका एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि जीन एक्सप्रेस करता है किसके लिए? टू मेक RNA एंड प्रोटीन, एंड हाउ मच ऑफ द प्रोटीन इज मेड एंड व्हेन इट इज टाइम टू स्टॉप मेकिंग दैट प्रोटीन बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड. तो ये नहीं है कि पूरे टाइम वही प्रोटीन ही बनता रहेगा, कहीं उसकी स्टॉपेज भी हो जाती है. इन सबको हम क्या बोलते हैं? ये सारे सब इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. तो जो रेगुलेशन है, देखिए कितनी बड़ी, आप ये सोचिए सेल फैक्ट्री कितनी नेचर, व्हेन वी लुक टुवर्ड्स नेचर, व्हेन वी अंडरस्टैंड साइंस, व्हेन वी रीड द डिटेल्स ऑफ द, when we go into the details of the science, I think we should appreciate our scientists, we should appreciate our researchers, we should appreciate God, and we see that हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल उसको पढ़ने की कोशिश की, लेकिन गॉड ने कैसे सेल फैक्ट्री, किस तरह से हम सब ह्यूमन बींग्स का, वी आर ऑल वेल डिफाइंड. ये नेचर में एवरीथिंग है. व्हाट हम लोग कुछ स्पेशल नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? हम केवल पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं या उसके गूढ़ अर्थ को निकालने की कोशिश करते हैं, बट नेचर में तो ऑलरेडी सब कुछ डेवलप्ड है. इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को हमेशा नेचर के संग लिंक्ड रहना चाहिए. जब नेचर में लिंक्ड रहोगे तो आप नेचर को जितना समझोगे उतना ही कम है, ऐसा लगता है. इट्स एन इमेंस वर्ल्ड. So coming back to the regulation of gene expression, what is happening in the gene expression? It conserves energy and space. It will always require a significant amount, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि जब प्रोटीन और जीन एक्सप्रेस होने जा रही है, कोई बहुत बड़ा गतिविधि होने वाली है, तो हमें क्या चाहिए? एक एनर्जी भी चाहिए. एक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्रेस एवरी जीन. सो इट इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट टू टर्न ऑन द जीन्स ओनली व्हेन दे आर रिक्वायर्ड. इसीलिए जब उनको ज़रूरत होती है ना, तभी वो लोग जीन को टर्न ऑन करते हैं, यानी कि अब भी काम करना शुरू करना है. अब ये नहीं कि अगर पहले से टर्न ऑन करके लाइट ऑन करके रखी हुई दिन भर एनर्जी वेस्ट हो रही है, ऐसे नहीं होता सेल्स में.
उनके जब ज़रूरत होती है तभी वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो इलेक्ट्रिसिटी बंद करते हैं। वो कभी भी अपनी लाइट्स को खुली छोड़ के नहीं चलते हैं। सो what is a significant amount of energy for an organism to express every gene? So it is more energy efficient to turn on the genes only when they are required. So in addition, only expressing a subset of gene in each cell saves space because DNA must be unwound from its, क्योंकि उससे पहले डीएनए को अनवाउंड होता है, मतलब उसको अपने आप को खोलना पड़ता है, वो तो वाउंड शेप में होता है, तो इट शुड बी अनवाउंड फ्रॉम इट्स टाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर टू ट्रांसक्राइब, आपने वो सब वर्ड सुने हैं, ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट द डीएनए है, मतलब ट्रांसक्राइब मतलब एक जैसे बिल्कुल उसको अपने डिकोड करता है, ट्रांसक्राइब करता है, और उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, और उसके बाद में ट्रांसलेट होता है, जैसी ऐसी कॉपी बनाते हैं तो ये रेप्लिकेट करता है, ये रेप्लिकेट करता है और उसकी फ़ोटो कॉपी करता है, और वो उसको डिकोड कर देता है। ये अभी हम आगे पढ़ाएंगे। सेल्स वुड हैव टू बी इनॉर्मस इफ एवरी प्रोटीन वे एक्सप्रेस्ड इन एवरी सेल ऑल द टाइम। पता चला सेल को तो बहुत काम करना पड़ता, अगर ऐसे होता तो पता चला बॉडी तो एक ही दिन में एग्जॉस्ट हो जाती। तो इसलिए इसको जब उसको ज़रूरत होती है वो अपना अनवाइंड करता है, और वो क्या करता है, जीन एक्सप्रेस करने के लिए फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, और फिर प्रोटीन एक्सप्रेस होता है। सो द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमने इसको बड़े सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Malfunctions in this process are detrimental to the cell and can lead to the development of many diseases including cancer. तो जब ये सब जो कैंसर और ये सब डिजीजेज और ये सब क्या होता है, क्योंकि हमारे सेल के अंदर malfunctions हो जाते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन को किस तरह से हम डिफरेंट लेवल्स पर पढ़ेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो अब जैसे जीन एक्सप्रेशन का सबसे पहले क्या होता है कि व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक कोड, अभी हम बोल रहे थे ना, ये जीन्स जेनेटिक कोड रखते हैं, या दे आर द सोर्स ऑफ इनहेरिटेंस, दे आर द सीट ऑफ इनहेरिटेंस। सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक कोड, मतलब जेनेटिक कोड कौन है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मैंने जानबूझ के डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं लिया, क्योंकि ये मुझे अच्छी तरह से पता था कि आप लोग को डीएनए और आरएनए से जो रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो लोग आप जानते होंगे। तो इससे कीपिंग दैट इन माइंड आई हैव टेकन हियर द सिंपलेस्ट वन। अदरवाइज क्या होता है कि ये चैप्टर फिर इट वुड हैव बिकम अ वेरी डिटेल चैप्टर अगर हम डीएनए आरएनए से वैसे बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन. Gene expression is the process by which the genetic code, the nucleotide sequence of a gene, is used in the synthesis of a functional gene product. Okay, it refers to a complex series of processes. ये किस चीज़ का रेफर करता है? Complex series of processes in which the information which is encoded in a gene, जो information gene में encode है, मतलब जो उसके अंदर लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। अब क्या होता है, उसमें लिखा हुआ तो है लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं हुआ है। हमारे पास डीएनए आरएनए सब कुछ रहता है, लेकिन वो एक्सप्रेस जब एक्सप्रेशन होता है तभी ये सब होता है। डीएनए तो है हमारे पास, डीएनए में कोड हमारा है कि हमको क्या प्रोटीन बनाना है, उस डीएनए को भी पता है मुझे कौन सा, लेकिन जब उसको ज़रूरत होती है, जब उस फंक्शनल प्रोडक्ट की जब ज़रूरत होती है तभी वो अनवाइंड करके बनाता है, सच एज द प्रोटीन दैट डिटेल्स सेल फंक्शन. It involves several different steps through which DNA is converted to an RNA. पहले क्या बनता है? RNA, which in turn is converted into a protein, or in some cases RNA, for example, genes coding the necessary information for transfer RNAs and ribosomal RNAs. Now the two main stages हमने अभी जो ऊपर बोला था, ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है. What is transcription? The production of a messenger RNA by the enzyme RNA polymerase. तो ये एंजाइम है, ये RNA polymerase एंजाइम है ना. हर किसी भी एक्टिविटी के लिए हमें ये पता है ना, प्रोटीन और इन सब की एक्टिविटी के लिए हर जगह एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है. तो यहाँ पर कौन सा वाला मैसेंजर RNA में द प्रोडक्शन मैसेंजर RNA बाय द एंजाइम, कौन से वाले एंजाइम से? RNA polymerase, एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्टिंग mRNA मॉलिक्यूल. फिर आता है ट्रांसलेशन, द यूज ऑफ मैसेंजर RNA टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सब्सिक्वेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल. अब भैया ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन होता है, तो ट्रांसलेशन हो जाता है उसके जैसे जब उसको वो रिवर्स अपना कोडिंग लेता है. ये तो आप लोगों ने देखा था, मैं अभी आगे डायग्राम में भी दिखाऊंगी. द यूज ऑफ mRNA टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस एंड द सब्सिक्वेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल processing of the protein molecule. Thus, gene expression is the phenotypic manifestation
What is gene expression? It is a phenotypic manifestation of a gene or genes by the processes of genetic transcription and genetic translation. ये किसके द्वारा होता है? Genetic transcription translation. अब sequence of events है, क्या क्या है इसमें? When genes express the genetic information, मतलब जो base sequence on DNA, it is first copied to the molecule of mRNA. किस पे कॉपी होगा ये? mRNA पे. जो ये इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जो ये mRNA पे जो जेनेटिक कोड कॉपी होता है तो रिवर्स उसका होगा ना, है ना? तो उसका जो क्या होगा वो mRNA ट्रांसक्रिप्शन होता है. और जो mRNA मॉलिक्यूल्स होते हैं देन दे लीव द सेल न्यूक्लियस, एंड ये क्या करते हैं? सेल न्यूक्लियस लीव करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? साइटोप्लाज्म में, इन यूकेरियोट्स, वेयर दे पार्टिसिपेट. कहाँ? वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में. तो प्रोटीन सिंथेसिस में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या करते हैं? दे स्पेसिफाई द पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स दैट मेक अप इंडिविजुअल प्रोटीन्स. क्यों? उसके बारे में वो ट्रांसलेट करके इंडिविजुअल प्रोटीन्स बनाते हैं. तो जैसे कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, आप लोग ये देखिए इधर, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द जीन एक्सप्रेशन. ये आप देख रहे हैं डीएनए, जीन इज इक्वल टू सेक्शन ऑफ डीएनए कंटेनिंग इंफॉर्मेशन. डीएनए एक इंफॉर्मेशन करती है, तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए होता है, तब डीएनए से वो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होगा. तो इसका ट्रांसक्रिप्शन जब रेगुलेट होता है तो क्या बनेगा? आरएनए. आरएनए कौन सा? मैसेंजर आरएनए, जो कि कोडिंग आरएनए होता है एंड नॉन कोडिंग आरएनए होता है. दो तरह के, एक तो कुछ होता है जो सीक्वेंस करेंगे, एक नॉन कोडिंग होते हैं जो कि नहीं होते हैं, जो कि केवल बस बने रहते हैं लेकिन उनका कोई रोल नहीं होता है. अभी हम उसके बारे में भी आगे बताएंगे. एंड इसको बोलते हैं हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल में क्या आता है? कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग आरएनए. ओके. उसके बाद में होता है ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन में क्या होता है? ये रेगुलेशन होता है, और इससे क्या होता है? प्रोटीन्स. ये क्या रेगुलेट करेंगे? जीन एक्सप्रेशन को करते हैं. कंट्रोल क्या करते हैं? ट्रेट्स, मतलब कोई कैरेक्टर को करते हैं. और कंट्रोल क्या करेंगे? सेल फंक्शन. जो भी कोई सेल फंक्शन या कुछ होगा उसको ये कंट्रोल करेंगे. सो ये हमारा सीक्वेंस है ऑफ द जीन इवेंट्स. तो आई थिंक अभी हमारे ये दिमाग में पूरा अच्छी तरह से आ रहा है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हमें कैसे इसको करना है. अब की फेजेस हैं, ये डिफरेंट फेजेस हैं इन जीन एक्सप्रेशन. व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन? इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेप्स दैट फाइनली प्रोड्यूस अ फंक्शनल बायोमोलिक्यूल, क्योंकि उसे फाइनली फंक्शनल बायोमोलिक्यूल बनाना होता है. ठीक है. फाइनली जीन एक्सप्रेशन के स्टेप्स जो होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स जो जीन एक्सप्रेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो क्या करते हैं? फंक्शनल एक बायोमोलिक्यूल बनाते हैं. व्हाट आर दोज की स्टेप विच आर इन्वॉल्व इन जीन एक्सप्रेशन? इंक्लूड द फॉलोइंग. फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए. हमने ये बताया था अभी की फेज पे. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? डीएनए बनेगा, ट्रांसक्राइब्ड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग आरएनए. उसका एंजाइम कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज. फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? प्राइमरी आरएनए जो होता है ये होता है ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन. इसको मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं? मैच्योर मैसेंजर आरएनए. ठीक है. मैच्योर मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए बनाते हैं. तो इन प्रोसेसेस में कई टर्म्स आएंगे, जैसे स्प्लाइसिंग है. स्प्लाइसिंग किसको कहते हैं? क्लीवेज ऑफ इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्स मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और लाइगेशन ऑफ एक्सॉन्स यानी कि जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स दैट रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंसेस इन द आरएनए. ठीक है. ये हो गया स्प्लाइसिंग. देन कैपिंग एक ही टर्म आता है विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ अ कैप मॉलिक्यूल टू द 5' एंड. देन टेलिंग विच इज द एडिशन ऑफ पॉली ए टेल टू द 3rd एंड. तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. तो इसमें चूँकि ये तो हम चूँकि हम एक सिंपल ये देखना चाहते थे कि भाई आप लोग आसानी से समझ जाए, इससे हमने इस सब्जेक्ट को, जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए लिया है, जिससे कि आगे जब वो आप देखेंगे जीन साइलेंसिंग में क्या हो रहा है, इट विल बिकम ईजी. तो आरएनए ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मोस्ट ऑफ द मैच्योर एमआरएनएज दे प्रोड्यूस्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म. From the nucleus to the cytoplasm, where the next step in gene expression takes place. This is achieved by moving the mRNAs through tiny pores in the nucleus to reach the cytosol. Okay, so